can reach that particular state, that is from an individual family to the world family, what all activities we can indulge in so that we can do that. That is, consider all the humanity as being one and do something for humanity so that an atmosphere of fearlessness is created everywhere and we all feel comfortable and we feel as if we are protected. Resources will be available to us even in times of calamity. When this is the kind of feeling that is there in us, then only we can live with right understanding, we can maintain our relationships. Everything is required so that we can, reach or we can move towards being a world family. Okay, so let me share my screen again with you. Okay, so here you can see my screen, and I want people to enter on time so that the class is not disturbed. Okay. So for moving from फैमिली टू वर्ल्ड फैमिली, एज आई सेड कि हमारे अंदर सब सारे इंडिविजुअल्स के अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग, प्रॉस्पेरिटी की फीलिंग होनी चाहिए हर फैमिली में, सोसाइटी में फियरलेसनेस होनी चाहिए और कोएग्जिस्टेंस हमें आना चाहिए कि एग्जिस्टेंस इज कोएग्जिस्टेंस. वी कैन नॉट लिव अलोन. वी आर अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर you can say universe. So we have to coexist with all the other units that are there in nature. Okay? So now look at this dynamics of universal human order. इसके लिए हमें क्या चीजें हैं जो अचीव करनी बहुत जरूरी हैं. Otherwise we will not be able to ever move towards universal human order. Just give me a second. Okay. So now this is the dynamics of universal human order. How we can achieve it and what does it help us in. So सबसे पहले we need to have education that ensures the development of the competence to live. हमारी living एक इस तरह से हो that we understand what our value system is. It gives us संस्कार. Values माने संस्कार देती है. ऐसी education होनी चाहिए. स्क्रीन नहीं आ रही मैम. नहीं, आप सब लोग बताइए, सबके में नहीं आ रही क्या स्क्रीन? यस मैम.
Yes, मैम ma'am. ग्रीन दिख रहा है, Ma'am, ग्रीन दिख green रहा है दिख रही पूरा। है screen. अच्छा रुको, मैं एक बार फिर शेयर कर लेती हूँ, गिव मी अ सेकेंड। Now can you see my screen? Yes, Can ma'am. you see Yes, ma'am. Now it is visible. Okay. What are you typing in the chat box, all of you? Chat box हमारी कोई नितिन नाम से दूसरा बच्चा ज्वाइन हो गया है। अच्छा मैं चेक कर एक मिनट। तुम्हारी क्लास में क्यों लोग एंटर होते हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड। Okay, so let me come back to our screen. See what rubbish is being typed. Okay, so let me come back to the universal human order. Now, is it visible? So this is the dynamics. We need to ensure that education that gives us definite human conduct, यानी कि हमारा जो behavior है वो definite हो. We should know what are the things that we should follow, what feelings should we relate to as far as our relationships are concerned, and our behavior should be framed according to it. तो सबसे पहले यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर अटेन करने के लिए हमें ह्यूमन एजुकेशन देने की जरूरत है, जिसको हम ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन भी कहते हैं। और ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन मींस एन एजुकेशन व्हिच इज फुल ऑफ वैल्यूज एंड संस्कार्स व्हिच टेल्स अस व्हाट इज डेफिनेट ह्यूमन कंडक्ट। अभी आगे हम पढ़ेंगे क्या होता है डेफिनेट ह्यूमन कंडक्ट। सेकेंडली आप देखिए, जब हम इस अपने कंडक्ट को ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन पे बेस्ड करेंगे, then we will be moving towards a society in which all our goals are realized, means we are able to fulfill all our goals, that is to achieve universal human order. Then the third thing is कि हम ये समझें कि हमारा जो constitution है, that is humanistic in nature, that is the society in which we are living. Okay, the people over there live with प्रॉपर बिहेवियर। और जब ऐसी सोसाइटी बन जाती है, इसका मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। और चौथा हम देख रहे हैं कि ह्यूमन कंडक्ट नेचुरल है। जो ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन है वो हमें क्या दे रही है? ह्यूमन कंडक्ट दे रही है।
तो ह्यूमन कंडक्ट यानी हमारा बिहेवियर ऐसा होना चाहिए जो म्यूचुअल हैप्पीनेस, पीस, सेटिस्फैक्शन, ब्लिस को इंश्योर करे। तो यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर के लिए एक तो ह्यूमन कंडक्ट डेफिनेट होना चाहिए, एजुकेशन ह्यूमनिस्टिक होनी चाहिए, ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी का होना चाहिए, और फाइनली वी शुड मूव टुवर्ड्स यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। ओके, सो दैट इज हाउ वी कैन अचीव यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। ये सारी चीजें जब हम फॉलो करते हैं तभी हम यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर अचीव कर पाते हैं। So this is the dynamics of universal human order। ये हमने जो पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि हमारा क्या टारगेट होना चाहिए, राइट अंडरस्टैंडिंग, हमारे अंदर प्रॉस्पेरिटी, ये कैसे आती है 5 डायमेंशन से। 5 डायमेंशन क्या है? एजुकेशन, संस्कार, संयम एंड हेल्थ, प्रोडक्शन एंड वर्क, जस्टिस, सुरक्षा, एक्सचेंज एंड स्टोरेज। ओके, जब हम इन चीजों को समझेंगे, ह्यूमन ऑर्डर में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो हम अचीव कर पाएंगे यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। अब आगे हम चलते हैं, इसकी डायनामिक्स क्या है। यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर की डायनामिक्स कहती है कि हमारा जो कंडक्ट है वो ह्यूमनिस्टिक होना चाहिए, हमारी जो एजुकेशन है वो भी ह्यूमनिस्टिक होनी चाहिए, सोसाइटी में हम यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर की तरफ बढ़ें, दिस इज व्हाट वी शुड डू, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर सोसाइटी शुड बी सच दैट पीपल लिव विद ह्यूमन कंडक्ट, दैट इज ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस इज द डायनामिक्स ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। Now just look at this. Universal human order is something which shows the efforts of an individual to have a systematic arrangement of the entire universe. और ये जो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट यूनिवर्स का है वो कहाँ से जनरेट, कहाँ से होता है, स्टार्ट कहाँ से होता है? वो हमारे अंदर से स्टार्ट होता है। जब हम अपने अंदर से अच्छे संस्कार, वैल्यूज क्रिएट करेंगे, राइट और रॉन्ग का डिफरेंस समझेंगे, राइट अंडरस्टैंडिंग से लिव करेंगे, तभी हम यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर की तरफ बढ़ पाएंगे। इसके 3 विजन्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, आप समझ लीजिए। सबसे पहले ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन, दूसरा ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन, और तीसरा ह्यूमनिस्टिक ऑर्डर। सो दैट इज हाउ जब हम इन तीनों को प्रैक्टिस करते हैं तभी हम यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर की तरफ बढ़ पाते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने एक फॉर्म फॉरवर्ड किया था ग्रुप पे, सबने देखा है? मेरे ख्याल में आप लोग मैसेज भी कर रहे हो। कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. मैंने एक फॉर्म फॉरवर्ड किया था, आप सबने उसमें देखा कि आपको एग्जामिनेशन फॉर्म जो नेक्स्ट कमिंग सेमेस्टर का है वो फिल करना है। देखा था ना? सबने देखा होगा? तो पहले आप लोग अपने सारे ड्यूज मैम? क्लियर करो जिसकी, हाँ बोलो। मैं फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम नहीं हुआ था, एग्जाम की फी ले ली गई थी, तो वो रिफंड नहीं होता क्या? भाई तो हम फर्स्ट सेमेस्टर का तुम्हारी मार्किंग करके सारा वहीं तो भेज रहे हैं आरटीयू में। अब आरटीयू रिजल्ट बनाएगा, वो वही, इट्स अ पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोसीजर ओनली। जो प्रोसेस है दैट इज रिजल्ट कब तक आएगा फर्स्ट सेम का? क्या चीज रिजल्ट कब तक आएगा फर्स्ट सेम का? आएगा ना, अब हम मार्क्स भरें तुम्हारे पोर्टल पे, आरटीयू इज गिविंग देयर ओन मार्क्स अकॉर्डिंग टू द इंटरनल मार्किंग। ये पूरा एग्जामिनेशन प्रोसेस ही चल रहा है, अभी हम लोग अपनी तरफ से सारा कर रहे हैं, और उसके बाद जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा तो तुम्हारा रिजल्ट आएगा। ठीक है, सो यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट फर्स्ट सेम नाउ, वी आर सेंडिंग योर मार्क्स। अब आप आगे सेकेंड सेम की फीस सबमिट करोगे तो सेकेंड सेम में भी अगस्त तक की आपको डेट दी है, तो बस आपके उसके बाद में एग्जाम्स होंगे। अब वो ऑनलाइन कराएंगे, कैसे कराएंगे, दैट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन आरटीयू। वी डोंट हैव अ रोल टू प्ले इन इट, दे आर गोइंग टू डिसाइड, हमसे जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। ओके, सो दे आर कैरिंग आउट द एग्जामिनेशन प्रोसेस। लेकिन अभी आप रुको, आपका जो फॉर्म है शायद वो फिल नहीं हो पा रहा है, आप लोग कह रहे हो, है ना? कुछ लोगों ने मुझे मैसेज भी किया था। मैम फर्स्ट सेम के एग्जाम तो नहीं है। भाई अब नहीं होंगे ना, अब हो गया। आप सेकेंड सेम की फीस ले रहे हैं, सेकेंड सेम के देखो कैसे कराते हैं। ठीक है, तो आप उसको, उस प्रोसेस को कंप्लीट करो, पर उसके पहले आपको अपने सारे ड्यूज क्लियर करने पड़ेंगे, जितने भी फी के ड्यूज हैं आपके। जब आप वो कर लोगे फिर आप एग्जामिनेशन फी सबमिट करोगे। कई लोगों की पुरानी फीस में भी ड्यूज रह गए हैं, सबमिट होना है पूरा। प्लीज उस प्रोसेस को कंप्लीट करो पहले, फिर आपका एग्जामिनेशन फॉर्म आप फिल कर पाओगे। ओके,
So मैम वो रोल नंबर में प्रॉब्लम आ रही थी उसका क्या? वो हम देखते हैं अभी उस फॉर्म को। अभी आप पहले अपने पुराने ड्यूज सारे क्लियर कर लो। वो फॉर्म जब आपको फिल करना है तो हम एक बार मैं मैसेज और कर दूंगी आपको, पता करके आपके क्वेरीज हैं मेरे पास में, so I will do that. मैम ये इसकी लास्ट डेट कब है? मैं डाल दूंगी बेटा, अभी तो हमारे पास केवल फॉर्म, ये नोटिस आया था, मैंने वो शेयर कर दिया था आपके साथ में। मैं I will update you today itself. I'll find out and update you. ठीक है? So coming back to the universal human order. So as I was saying, इसके 3 elements हैं: humanistic education, humanistic constitution and humanistic order. अब मैं इन तीनों को एक एक करके आपको explain करूंगी. What are they? यहाँ तक कोई query हो तो पूछ लो आप. So what is humanistic education? It is the education जो animal consciousness को human consciousness में transform करती है. किसी को याद है एनिमल कॉन्शियसनेस ह्यूमन कॉन्शियसनेस का डिफरेंस क्या होता है? किसी को भी याद है? हमने इसको पहले किया है। एनिमल कॉन्शियसनेस में क्या होता है कि हम सिर्फ अपनी नेसेसिटीज को पूरा करने में लगे रहते हैं और आई पे ध्यान नहीं देते। जैसे कि एक एनिमल होता है, वो क्या करते हैं मैम, इनकी जो होती है रिक्वायरमेंट वो मैम फुलफिल हो जाती है, लेकिन उनकी इच्छा नहीं बढ़ती। जैसे कि एनिमल्स होते हैं वो खाना खा लेते हैं, उनके लिए वो हो गया, लेकिन हम ह्यूमंस क्या करते हैं कि हमें एक चीज से मन नहीं भरता, हम हमेशा प्रॉस्पेरिटी ढूंढते रहते हैं। सो दिस इज अ काइंड ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू। ओके, सो एनिमल्स जो होते हैं उनके लिए फिजिकल फैसिलिटीज एवरीथिंग. ओके, इफ यू रिमेम्बर, जिनको याद है, एनिमल्स जो हैं फॉर देम द नीड फॉर फिजिकल फैसिलिटीज नेसेसरी एंड कंप्लीट. लेकिन ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं उनके अंदर जो आई है वो इट इज मच मोर डेवलप्ड एंड दे शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड that physical facilities are limited, but फिर भी उनकी need for physical facilities is necessary and incomplete because they keep on differentiating the things because of the extra knowledge that they have. लेकिन जब human beings भी केवल physical facilities के पीछे भागने लगते हैं, they start living only for physical facility, that means that human consciousness has become animal consciousness. तो human consciousness की तरफ हम तभी बढ़ सकते हैं जब हमारा आई डेवलप हो, जब हमारे आई के अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग हो. लेकिन जब हम एनिमल कॉन्शियसनेस में रहते हैं, इट लीड्स टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. तो हम क्या करते हैं? अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंटिन्यूअसली ओवर कंज्यूम करते हैं और उनको एक्सप्लॉयट करते हैं. वी डोंट गिव बैक टू द यूनिवर्स व्हाट वी शुड, एंड इट हैज मेड द अर्थ अ बैड प्लेस टू लिव फॉर ऑल ऑफ अस. We can see how many natural calamities are there. We can see the pandemic that has come up. है ना? तो जब हम एनिमल कॉन्शियसनेस में ही रहते हैं तो हम अपनी लिमिटेशन नहीं समझते हैं, जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तरह तरह की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, एंड वी हैव नो सोल्यूशन टू इट. सो व्हेन वी स्टार्ट लिविंग विद एनिमल कॉन्शियसनेस, we are not living on an earth which is, suitable for us. But humanistic education can put a check on our action and enable us to justify things that we are doing, justify all the things that we do. And when we are able to do it, that means that we are living a life which is like human beings. Otherwise, we are living a life which is like animals. तो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है कि हम ये समझें कि एनिमल कॉन्शियसनेस और ह्यूमन कॉन्शियसनेस में कितना डिफरेंस है. अब आ जाते हैं व्हाट इज ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन. ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है एक सेट ऑफ रूल्स हैं, ठीक है, जिससे ह्यूमन बीइंग एक अच्छी कंफर्टेबल पीसफुल लाइफ विदाउट एनी फियर लिव कर सकता है. सो दिस इज अ सेट ऑफ रूल्स व्हिच वी ऑल शुड फॉलो. अब इसके थ्रू क्या होगा? We will be able to ensure that in relationships there is mutual fulfillment and there is good coordination among all the human beings. All the human beings live together as one. They don't live with fear. So वो कब हो सकता है?
जब हम उन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करें सोसाइटी में। कहाँ फॉलो करना है हमें उन रूल्स को? वी हैव टू फॉलो दीज रूल्स इन सोसाइटी, इन आवर रिलेशनशिप्स विद अदर पीपल, एंड वी हैव टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन. All the human beings have to come together for it. So human constitution is a kind of framework of all the human beings. They start living in harmony with themselves and with the other units that are there in nature, that is the entire existence. तो जब हम coexist करना शुरू करते हैं सोसाइटी में, हम समझते हैं हमारा क्या रोल है, हमें कैसे coexist करना है, तभी हम ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन अचीव कर सकते हैं. और तीसरा एलिमेंट है यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर का, दैट इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज ह्यूमन ऑर्डर. तो इसमें हमें क्या चाहिए? राइट अंडरस्टैंडिंग. कहाँ पे? सोसाइटी में. Excuse me. We need to have right understanding in the society, and we need to have continuity of this process in the human beings, that is human race, from one generation to the next generation. When this happens, that means that we are living in peace and we are living with, a particular order, with a particular understanding. Now, human beings, when they are part of the human order, they have definite answers for every how and why. Spiritually हो चाहे वो intellectually हो, चाहे वो materially हो. Okay. जब हम ऐसा करने लगते हैं, जब हमें समझ आ जाती है कि हाउ एंड व्हाई क्या है हर चीज का, ठीक है, वी कैन अश्योर दैट वी आर लिविंग कंटिन्यूअसली विद हार्मनी एंड विद हैप्पीनेस. अब मैं पीछे जाती हूँ. कोई मुझे बताएगा कि ये राइट अंडरस्टैंडिंग हमें किस चीज की चाहिए, कैसे आती है हमारे अंदर? Let's go back to what we did in Unit 1 or Unit 2 and let's discuss how we achieve right understanding. What is it that is required? I will type it in the chat box. Otherwise, हाँ बताइए. मैं एग्जाम्पल देकर समझना चाहूंगा. बोलो. लाइक अभी जो ट्रेड में चल रहा है कि काफी लोग बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर में कि प्राइवेट लाइक मेरा खुद का एग्जांपल देता हूँ. मेरी सोसाइटी में काफी लोग बोलते हैं कि प्राइवेट जॉब में कुछ नहीं, गवर्नमेंट जॉब की तरफ जॉब, मूव टुवर्ड गवर्नमेंट जॉब, नथिंग इन प्राइवेट सेक्टर. बट एक एग्जांपल लेकर बताऊंगा. अमन दत्तरवाल जिन्होंने अपना खुद का स्टार्टअप किया, अपना खुद का ऑनलाइन इंस्टीट्यूट चालू किया, उन्होंने एक राइट अंडरस्टैंडिंग दी कि प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत कुछ स्कोप है. उसके साथ में और एग्जांपल देकर बताना चाहूंगा जो कि अभी बहुत ट्रेड में चल रहे हैं कि कोई भी बिजनेस छोटा नहीं होता. एक पर्सन है फुल करके जो कि अभी काफी ट्रेड में चल रहा है, एमबीए चाय वाला. तो उस बंदे ने एमबीए करके उसने खुद का चाय का स्टार्टअप चालू किया और आज वो अपनी इंडिया में डिफरेंट फ्रेंचाइजी देने लगा है. लाइक चंडीगढ़ में उसने स्टार्ट किया, अभी कमिंग सून जिगर देखो, राइट अंडरस्टैंडिंग ठीक है, एजुकेटेड पर्सन में आई, उसने कुछ ऐसा किया जिससे कि सोसाइटी गेन कर रही है. ये नहीं कि केवल अपने गेन के लिए उसने ये इस तरह के बिजनेस किए, अपने गेन के लिए किए. दैट मींस दैट पर्सन इज लिविंग ओनली फॉर द सेल्फ. बट हाउ टू अचीव राइट अंडरस्टैंडिंग, इसके लिए मैंने आपको यूनिट 1 में बताया था कि हमको सेल्फ मैम वी कैन अचीव द राइट अंडरस्टैंडिंग विद द हेल्प ऑफ अ नेचुरल एक्सेप्टेंस. नेचुरल, वही मैं बताना चाह रही थी. सेल्फ एक्सप्लोरेशन करके हमको देखना है कि क्या चीजें नेचुरली एक्सेप्टेबल हैं, क्या हम वो सारी चीजें कर रहे हैं. तुमने जिगर ने अभी बताया कि मैम वो बिजनेस कर रहा है, वो जना वो बिजनेस कर रहा है, पर क्या वो उस बिजनेस को विद राइट अंडरस्टैंडिंग कर रहा है? क्या वो ये देख रहा है कि वो एनवायरनमेंट को कुछ वापस करेगा या दूसरे ह्यूमन बींग्स के साथ अपनी रिलेशनशिप्स को अच्छा करेगा? अगर कोई भी पर्सन इस तरीके से ये सोच के अपने बिजनेस को करता है, ऐसा बिजनेस करता है जिससे कि वो नेचर को एनरिच करता है या रिलेशंस को एनरिच करता है, दैट मींस दैट पर्सन इज डूइंग समथिंग व्हिच विल हेल्प वन टू अचीव ह्यूमन ऑर्डर. तो हमें राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ जब हम चलते हैं तभी तो हम ह्यूमन ऑर्डर, अपनी सोसाइटी को एक पीसफुल एग्जिस्टेंस के लिए, हार्मनी के साथ रहने के लिए हम अपनी सोसाइटी को बनाते हैं. लेकिन अगर हम कामों को ऐसे करते चले जाएं कि बस केवल अपने गेन के लिए, सम काइंड ऑफ मटेरियल गेन वी आर गेटिंग,
तो हम एनिमल कॉन्शियसनेस में रह रहे हैं इसका मतलब। और हम चाहे कितना भी हार्डवर्क कर ले, पर हम फिर भी वैल्यूज को पीछे छोड़ा है इसका मतलब। हार्डवर्क करके हमने अपने लिए पैसा कमा लिया, अपनी फैमिली के लिए कमा लिया, बट व्हाट अबाउट द होल एग्जिस्टेंस? बिकॉज एग्जिस्टेंस इज कोएग्जिस्टेंस। तो हम आज कोई भी, आप इंजीनियरिंग कर लोगे, आज भी अभी करते टाइम भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि चलो हम अपना स्टार्टअप करें और कुछ करें। तो जो भी चीज हम कर रहे हैं वो इस चीज को ध्यान में रखते हुए करें कि वी आर अ पार्ट ऑफ अ बिग यूनिवर्स, अ बिग सोसाइटी which is a world family, and we have to work for the मैम benefit मुझे भी of कुछ all. बोलना है। हाँ बोलो। मैम अभी जो जिगर ने जो पॉइंट्स बताया, तो मैम वो एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग में जो चीजें बताई जाती है वो इसने बताया। जिस चीज का मेन एम है एजुकेशन से हटाना दूर, यानी नाम मैम बोलो आप मेरे को, स्क्रीन पे नाम दिख रहा, कौन बोल रहा है? नफीस। नफीस, हाँ बोलो। मैम एजुकेशन का मेन पर्पस होता है एनिमल कॉन्शियसनेस और ह्यूमन कॉन्शियसनेस को वो अपने समझते हैं कि कहाँ पे किस चीज की जरूरत है। लेकिन किसी को अपना स्टार्टअप चला रहा है, कोई बड़ी कंपनी खोल रहा है, तो उससे किसी की कोई वो थोड़ी हो रही है मैम फायदा, वो तो खुद का कर रहा है ना। मैं अभी इतनी देर से क्या बोल रही हूँ? मैं अभी तो यही बोल रही हूँ ना कि आप करिए, ठीक है, बिकॉज आप देखो अभी हम ये लास्ट हमारा चैप्टर है ना, ये प्रोफेशनल एथिक्स की तरफ बढ़ेगा कि हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कैसे एथिक्स फॉलो करेंगे, कैसे हम एक अच्छे प्रोफेशनल बन पाएंगे। तो अभी हम केवल डिस्कस कर रहे हैं कि ह्यूमन ऑर्डर होता क्या है, ठीक? जब हम ये समझेंगे तभी तो हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि हम सारे यूनिट्स के साथ हार्मनी में रह पाए। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अगर कोई स्टार्टअप कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो ऐसा हो जो कुछ दे, नेचर को कुछ दे, दूसरे ह्यूमन बीइंग्स के लिए कुछ करे। ये नहीं कि वो केवल हम अपने मटेरियल गेन के लिए सब कुछ करते हैं। अब बताओ, डू यू एग्री नफीस? डू यू एग्री और नॉट व्हाट आई एम सेइंग? यस मैम, सही बोल रहा हूँ। वही तुम बोल रहे थे अभी, तुमने भी तो यही बोला कि मैम उसने ऐसे एग्जांपल दिए कि ऐसा चाय वाला करा, उसने इसने ये किया, उसने वो किया, XYZ, है ना? तो उसने क्यों किया? जिगर आप बताओ कि उसने क्यों किया ऐसा? अपने गेन के लिए क्या मैम? नहीं, जिगर से पूछ रही हूँ मैं, जिगर ने क्योंकि एग्जाम्पल दिया था। आप जिगर बताओ कि उसने ओके, हर एक बंदा अपने लिए करता है, बट मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया था जो कि था अमन दत्तरवाल का। तो वो जो बंदा है वो कि आप उसका पूरे ओवरऑल इंडिया में काफी बच्चों को हेल्प करता है। ये एक प्रकार का राइट अंडरस्टैंडिंग हुई है। हाँ, अगर वो किसी की हेल्प कर रहा है, देखो अगर वो किसी की हेल्प कर रहा है, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ कर रहा है साथ साथ, देखो अपना गेन वो भी हम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम जो भी चीज करते हैं वो टुवर्ड्स द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी भी करें या टुवर्ड्स द बेनिफिट ऑफ नेचर भी करें। तो जब हम इन दोनों चीजों को कोऑर्डिनेट करके एक साथ बैलेंस में लेके चलते हैं, है ना, तभी हम अपनी वैल्यू बेस्ड लिविंग बना पाते हैं। और कौन सा, और ये एग्जाम्पल एक तुमने मुझे बताया, और दूसरा बताओ। मैंने जो चाय वाला का दिया था, प्रफुल, वो पर्सन है जो कि बंदों को हेल्प करता है उनका खुद का स्टार्टअप चालू करने के लिए। वो फ्रेंचाइजी देते हैं और अलग अलग जगह जाकर, अलग अलग स्कूल्स जाकर वो ऑनलाइन वेबिनार्स लेता है जहाँ पे बंदों को मोटिवेट करता है उनका खुद का स्टार्टअप चालू करने के लिए। चलो ठीक है, यहाँ से मुझे प्रफुल्ल से मुझे एक आइडिया मिला कि बिजनेस छोटा नहीं होता। हमने बहुत टाटा का सुना है कि लोहा वो सब चीजें छोटी मोटी कोई बिजनेस नहीं होता, बट हमारे इंडियन के एक पर्सन ने ऐसा करके बताया और वो भी एग्जांपल शो कर रहा है, इसलिए मैंने ये एग्जांपल दिया। मैं चलो अब मेरी बात आप एक और बताती हूँ आपको। कितने लोगों ने सुना है कि CSR एक्टिविटी होती है किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में? कोई बताएगा मुझे क्या चीज होती है? Come on, you are into a professional course, बताओ what is CSR activity? हर इंडस्ट्री को करनी होती है, बड़ी से बड़ी कंपनी को, बड़े से बड़े कॉर्पोरेट्स को। Any idea what is it? No idea. Nobody. Come on, बोलो तो सही कम से। नहीं बेटा, no. See, every big corporate has to carry out corporate social responsibility, which is a part of this what we are doing.
And what is this CSR activities को कहते हैं corporate social responsibility. Why do they do it? क्या रीजन है? किसी भी बड़े से बड़े आप MNC की बात कर लो, MNCs करती हैं, पूरी दुनिया में होती है corporate social responsibility. What is it? अब मैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि मेरा टाइम अभी 1-2 मिनट है, लेकिन मैं नेक्स्ट क्लास में हाँ बताओ। ये इसलिए की जाती है ताकि जो कोऑपरेटिव कंपनीज है वो थोड़ी लिमिट में रहे, जैसे यानी कि कोई भी इंडस्ट्रीज है तो उसके प्रोडक्शन के लिए कुछ ना कुछ वो ऐसे यानी कि काम करेंगे जिससे नेचर को थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है या फिर किसी ह्यूमन हेल्थ अब ये कौन बोल रहा है? एक बार नाम बोल दो, नाम बोल के बोलो, क्या नाम है? मैम ललित बोल रहा हूँ। कौन? ललित। ललित, आप ना एक बार ना, आज मैंने आपको एक हिंट दिया है, ये इस तरह की चीजें कंपनीज बड़ी बड़ी करती हैं, तो एक बार इसको थोड़ा सा सब लोग, पूरी क्लास एक बार स्टडी करके आएगा कि इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो मैंने बात करी नहीं होती क्या है, व्हाट आर दे एंड व्हाट डू कंपनीज डू, देन आई विल टॉक टू यू इन द नेक्स्ट क्लास अबाउट इट. हम इसको डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, तभी हम ह्यूमन ऑर्डर अचीव कर पाएंगे, है ना. तो इसलिए आज दुनिया में इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं, दैट इज कॉर्पोरेट्स करती हैं, दैट इज नोन एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसको थोड़ा सा देख के आना, अब नेक्स्ट क्लास में इसको फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है? Okay, can I end the class? Yes, ma'am. So we'll discuss tomorrow. Okay, be ready with the answer to what I have been talking about. कि professionals क्या करते हैं, corporates आजकल क्या कर रहे हैं जिससे कि order maintain कर पाएं, ठीक है? So that will be all for today.